4 انگریزوں کی فوج نے مل کر کے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا. ہمیشہ سے یہی تاریخ رہی ہے, ہمیشہ سے. اس لیے کہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیر 1-2 کے قابو میں آ بھی نہیں سکتا. ہمیشہ گھیر کر مارنے کی عادت کتوں کی رہی. کربلا میں بھی تو یہی ہوا, اکیلے امام حسین کے ساتھ صبح سے لے کر دوپہر تک لڑتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک حسینی جوان نے 200 یزیدیوں کو مار ڈالا ہے. ایک تاریخ خالی مرنے والوں کی نہ بتاؤ, شہید ہونے والوں کی نہیں بتاؤ. یہ بھی دیکھو حسینیوں نے کتنوں کو سلایا ہے. ایک حر بن یزید جو 1 رات پہلے امام حسین کے پاس آ کر بیعت کیے تھے, 1 رات پہلے, اور انہوں نے دوسرے دن جنگ شروع کی تھی تو 120 لوگوں کو مارا تھا. آپ اندازہ کرو 1 رات کا حسینی 120 کو سلا سکتا ہے. انگریز اچھی طرح جانتے ہیں جو پیدائش حسینیوں کی طرح کو سلا سکتا ہے. سب پتہ ہے کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرفتار کر کے ان کے جسم پر استری چلاتے تھے, گرم استری چلاتے تھے, اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اور کفایت علی کافی کو بار بار کہتے فتویٰ بدل ڈالو, آ جاؤ ہمارے وزارت میں ہمارا منصب لے لو. ہر مہینے پاؤنڈ دیے جائیں گے, برطانیہ کے پاؤنڈ. لیکن عاشق مصطفیٰ ڈالر اور برطانیہ کے پاؤنڈ پر نہیں بکتا, وہ حسن مصطفیٰ کا دل دادا ہوتا. 8ویں دن جب ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا, پھانسی کوئی عام چیز نہیں ہے میرے عزیز, جس کو سامنے دیکھ کر کے بچوں کی حالت خراب ہو جائے. لیکن کفایت علی کافی پھانسی کو دیکھ کر کہنے لگے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. السلام علیکم دوستوں, ناظرین کرام. تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے خوشحالی خبر اور سب سے بہترین ویڈیو میں لایا ہوں, جو ہم سبھی کے لیے اور آپ سبھی کے لیے سننے کے لیے, جو ہم لوگ ایک ساتھ آرام سے سنیں گے اس ویڈیو کو, کیونکہ یہ بیان اتنا بہترین اور ہم سبھی کے لیے بہت ہی بہترین سننے والا یہ ویڈیو ہے. کیونکہ ایسا بیان ہم سبھی کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جو نہیں جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, اپنے آقا کے بارے میں, اپنے رسول کے بارے میں, اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں یا پھر نہیں کے برابر جانتے ہیں, ان لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ان لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سنیں, کیونکہ ایسا ویڈیو ان کو سننا بہت ضروری ہے. تو اسی پر میں آج بیان لایا ہوں, تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ایسا بیان کیا حضرت نے جو آپ لوگ سن کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہم لوگ کا دین کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے, اور ہم سبھی لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بھی کہا کہ کاش ہم اس امت میں پیدا ہوتے. اور اس سے بھی بڑا فضل یہ ہم لوگ کا کہ ہم لوگ اہل سنت اور اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, نہ کہ کسی اور کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا, بس اپنی ویڈیو کو میں دکھانے والا ہوں. اس ویڈیو کو جو یہ بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے, جو میں ہر روز ان کا ہی بیان اپلوڈ کرتا ہوں, کیونکہ بہت ہی بہترین اور لاجواب بیان دیتے ہیں ہم سبھی کے لیے, اور ایسا بیان دیتے ہیں کہ وہ سننے کے لائق رہتا ہے. ہم سبھی کو اس سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے میں ان کا بیان اپلوڈ کرتا ہوں. تو ایسے تو بہت سارے علماء ہیں جن کا بیان سنا جا سکتا ہے, لیکن کسی کا بھی ایک خاص ہوتا ہے, تو میرا بھی خاص وہی ہے جو میں اکثر انہی کا زیادہ سنتا ہوں. اور بھی سنتا ہوں لیکن ان کے جیسا اتنا نہیں سنتا ہوں ان لوگ کا. تو یہ بہت بہترین مجھے لگتا ہے ان کا بیان اور ہر چیز. تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لاسٹ تک اور دیکھیے, اور اس ویڈیو کو لائک کریے یا نہ کریے, بس اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریے, کیونکہ ہم لوگ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں. تو اسی موقع پر یہ بیان ہے, تو اس سے آپ سبھی کو سننا بہت ضروری ہے. تو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے, اور اسے بنا اسکپ کیے ہی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے. تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں, آئیے ہم سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرفتار کر کے ان کے جسم پر استری چلاتے تھے, گرم استری چلاتے تھے, اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اور کفایت علی کافی کو بار بار کہتے فتویٰ بدل ڈالو, آ جاؤ ہمارے وزارت میں ہمارا منصب لے لو. ہر مہینے پاؤنڈ دیے جائیں گے, برطانیہ کے پاؤنڈ. لیکن عاشق مصطفیٰ ڈالر اور برطانیہ کے پاؤنڈ پر نہیں بکتا, وہ حسن مصطفیٰ کا دل دادا ہوتا. 8ویں دن جب ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا, پھانسی کوئی عام چیز نہیں ہے میرے عزیز, جس کو سامنے دیکھ کر کے بچوں کی حالت خراب ہو جائے. لیکن کفایت علی کافی پھانسی کو دیکھ کر کہنے لگے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا, نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. پھانسی بھی دے دی. یہ سارے جو معاملات ہوئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں آزمائے گئے. اور میں کہہ رہا تھا کیا بات ادھر ادھر نہ جائے بات, انگریز مجبور ہو کر یہ کہنے پر آ گئے تھے یہ آقا کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا,
ये वाक़ा कश मौत से डरता नहीं। जरा आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुक्त आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क़ मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियां तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता? हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले गए, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रख दे या 80 साल अगर उम्र होती तो रख ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में नहीं ले गया, रेप में नहीं ले गया, मर्डर में नहीं ले गया। दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा इस आलिम को क्यों ले गया, तो तुम पुकार करके यही कहोगे इश्क़ मुस्तफा की बात करता था इसलिए ले गया। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमारा जुर्म यही तो है, दुनिया को तुम्हें बताना होगा क्या जुर्म किया था, अपनों को भी बताओ, दूसरों को भी बताओ। इसलिए मेरे अजीजों, कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने अपने साहबों से पूछा भी था कि बात क्या है, छोटी सी बात को इतना ज्यादा क्यों बनाया गया? उन्होंने कहा बात छोटी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कई सालों से जो मरे हुए वो भी खड़े होने लग रहे हैं, कई सालों से जो सोए हुए हैं वो भी उठने लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बन जाए, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, इश्क़ मुस्तफा पर बात करना, इज्जत मुस्तफा का चर्चा करना, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मौत तक 1000 बार हम करते रहेंगे, 1000 बार करते रहेंगे। इसलिए कि इससे कोई समझौता नहीं। हाँ, हम कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर अपने नबी पाक की इज्जत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये करता रहे। हर जवान भी करेगा। नाम मुस्तफा लेना कोई जुर्म नहीं है, हुजूर की इज्जत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक साहब ने कहा, मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बयान करो, जितना करना है अपने नबी की तारीफ करो, जो करना है करो, लेकिन आप ये दूसरों को कुत्ता क्यों बोलते हो, ये सारी चीजें क्यों कहते हो? मैंने कहा अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे, आपकी माँ को कहे कि बदकार है, तो आपको कैसा लगेगा? वो खड़े हो गए, कहा मेरी माँ को क्यों मिसाल में ला रहे हो, आप मेरी माँ के बारे में मिसाल क्यों दे रहे हो? मैंने कहा अभी तो मिसाल ही दिया, गाली नहीं दिया, खाली मिसाल, सपोज, एग्जाम्पल, इस पर आप इतना भड़क गए। याद रखो मेरे अजीजों, आप अपनी माँ से जितना मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा एक सुन्नी आशिक रसूल अपने नबी से मोहब्बत करता। हमारी जाने कुर्बान उस नबी पाक की जात पर। आप रुए माज़ना में मुस्तफास, आप क्या समझते हो दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी टोपीदारी से है, हमारे जुब्बे कुब्बे और हमारे रंगो नस्ल से है। हमें इज्जत हमारे रंगो नस्ल और हमारे नाम और नमूद, हमारे इल्म और हमारे मनसब, हमारी पगड़ी और हमारे जुब्बे नहीं दिलाते। हमें जो इज्जत मिलती है वो किस बात पर? जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात मैं अभी खत्म करने आ रहा हूं, बस आप इस बात को अंदाजे में रखो मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत आंधियां हैं, बहुत तूफान, और लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इसलिए ऐसे चलना चाहिए। हालात तो हुजूर जब ऐलान नबूवत किए थे उस वक्त से लेकर अब तक कभी सही हुए ही नहीं, कभी सही नहीं हुए। क्या बदर में हालात सही थे? उहद में हालात सही थे? खंदक में हालात सही थे? खैबर में हालात सही थे? फतेह मक्का में हालात सही थे? करबला में हालात सही थे? कभी नहीं हुए। तो ये क्या ताना दिया जाता है, ये क्या मसलहत और हिकमत की बात की जाती है? हालात बड़े पेचीदा, हालात बड़े सख्त है मेरे अजीजों, ये क़यामत तक ऐसे हालात रहने वाले। सतीजा कार रहा है अज़ल से दाइम रोज़, शरारे फूल हबी से चराग़ मुस्तफ़ा भी, हर ज़माने में ये हालात रहेंगे। आशिक़ मुस्तफ़ा को इन्हीं हालात में परचम रिसालत बुलंद करके रखना है। वो सहाबा से पूछो जो निकल पड़ते थे, पैरों में चप्पल नहीं और कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, एक खजूर की
गुठली पर पूरा दिन गुजार लेते थे, फाकाकश थे, लेकिन उनसे पूछो क्या उनके लिए हालात सही थे? जब अफ्रीका जा रहे थे, जब यूरोप की कलीसियाओं में अजानें दे रहे थे, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नामे मुस्तफा बुलंद कर रहे थे, उनसे पूछो हालात सही थे? वो कहेंगे कहाँ के हालात सही थे? उस वक्त भी हालात सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन सहाबा का हाल ये था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। ये सहाबा का मसलक था, उनका मामूल था, टल न सकते थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे दिल क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आप मजबूती पैदा करो नाम मुस्तफा के साथ। आला हज़रत की ये बात बड़ी प्यारी लगी, आप बड़े परेशान थे, और ये बात मैं आपको बताता जाऊं, जो इस हक रास्ते पर आएगा उसे समझ करके चलना पड़ेगा, कांटों के रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह फूल सजाए जाएंगे। लोग ये समझते हैं नामूस रिसालत की बात करें और फिर हलवे पराठे खाते रहे और हम नजराने लेते रहे लोगों के यहाँ जाकर के। लोगों को ऐसा लगता है, आज मैं इस बात की वजाहत करता हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कभी मुझे फकीर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मेरे नाम का नारा लगाएं, कभी नहीं। जो नारा लगे वो मेरे मुस्तफा के नाम का हो। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमारा इस्तेमाल करना कहीं पर किसी के लिए वाजिब नहीं। आपकी मोहब्बत सराहों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तेकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम, कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे कहा गया था कि अगर छूट गए तो समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हक़ीक़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा माल बेकार नहीं कर सकेगी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है, अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह चाहे तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है, हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी, और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। और आजमाइश तो होगी, इम्तिहान तो होगा। सहाबा के साथ क्या नहीं हुआ, उनके माल, उनकी औलाद, उनके घर बार सब लूट लिए गए थे मक्का में। आजमाइश ऐसी थी कि वो पूरा दिन एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे, और जंगें ऐसी उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनको अमन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती थी। हर एक जंग से निकले दूसरी जंग, दूसरी से तीसरी, हुजूर पाक की वफादारी के साथ इम्तिहान तो होगा। आज मिलाद मुस्तफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क़ रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियां, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सर से लेकर पैर तक इश्क़ मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहाँ ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठे थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है, और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान का तरावी पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है, दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है, वो मेरी बात का आखिरी हिस्सा है। इस दुनिया का एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, क्योंकि ऐसा बयान बहुत ही कम लोग सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को सुने और देखें और इस चीज पर अमल करें। और मैं इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि आप सभी लोगों को पता चले कि हम लोग क्यों जुलूस निकालते हैं, हम सभी लोग अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों
विलादत पाक मनाते हैं और क्यों हम सभी लोग झंडे लहराते हैं, इतने घर को सजाते हैं, आखिर मकसद क्या है हम सभी लोगों का, और आखिर हम लोग उस चीज को क्यों करते हैं। तो वही सब के लिए ये बयान था जो आप सभी ने सुना इसको, और अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत क्यों मनाते हैं। तो बस यही बात था, और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ये इल्म ऐसा चीज है जो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग दूसरे को सिखाएंगे बताएंगे, उतना ही ज्यादा आपको ही फायदा है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का इल्म है तो अगला आदमी को अगर पता नहीं हो तो आप लोग उसे अगर बताएं तो उसे भी उस चीज का इल्म हो जाएगा, क्या पता वो उस चीज पर अमल करने लगे। अगर इल्म रहे तब ना कोई अमल करे, अगर इल्म ही नहीं रहे तो अमल कितना भी कर ले तो उसका तरीका गलत होने से वो अमल सही नहीं होता है। अगर नमाजी लोग पढ़ता है, आप लोग देखते होंगे, हम भी देखते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं मस्जिद में जिनको ना खड़ा होने का तरीका, ना नियत बांधने का तरीका, ना रुकू सजदा, ना बैठने का, बहुत ऐसी चीज रहता है जो लोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिर नमाज का तरीका और नमाज पढ़ने का किस तरह तरीका है हम सभी के लिए, और किस तरह लोग जो नहीं जानते हैं वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो जो जानते हैं वो तो सही पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बात है, तो मैं इसलिए शेयर करने के लिए बोलता हूँ कि आप लोग उन लोगों के पास शेयर करिए जो इस वीडियो से बहुत दूर रहते हैं, जो इस्लामिक वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको एक दो वीडियो जरूर दिखाइए, क्योंकि इस्लाम ऐसा, इसमें नूर है जो किसी के भी दिल पर उतर जाता है और कोई भी इस चीज को अपनाना चाहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।